Start. Hello student, welcome to Talking Textbook Polynomial chapter part 1. This chapter is very important और हमने पार्ट 1 मतलब रियल नंबर चैप्टर लिया 2 पार्ट के अंदर 1 and 2. उसका वेटेज जो है 6 मार्क्स का है. अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर को अकॉर्डिंग टू 10th क्लास बोर्ड के हिसाब से एलजेब्रा यूनिट दिया गया है जिसके अंदर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. ये सारे चैप्टर यूनिट 2 है जिसको हम बोलते हैं एलजेब्रा. पॉलिनोमियल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इस चैप्टर के अंदर अब पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम रिलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. तो पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या है. इसको बोलेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है ये दिमाग रखे. तो हमारे को सबसे पहले एक्सप्रेशन और इक्वेशन और एक और वर्ड होता है इनइक्वालिटीज. अब एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं. टर्म्स दैट इज अ प्लूरल फॉर्म. बट टर्म की बात करते हैं तो टर्म इज बाय व्हाट रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल and the power of the variable. Now real number, this you have studied in chapter 1, but here again I will say real number is what? Rational and irrational. Now variable, any letter represent any letter of English alphabet. You can take power positive integers. When we talk about the term is made by real number multiplied by variable and the power of the variable. Now real number, that is rational and irrational number, and variable, that is any letter of English alphabet. If I say example, suppose I say √2. This √2 is what? Irrational. Now multiply by x, where power is 3. So this is what? A term. This is term. Now this type of terms when added you will get expression. Now here if I say that is √2 x cube minus 3/2 x square plus 5x minus 7, this is an expression. That is the terms. If I say separate the terms, so what you will get? √2 x cube plus, that is minus 3/2 x square plus
again that is 5x plus that is minus 7. This is an expression. Now this expression, the variables in the expression are x. So you have to say that polynomial that is p of x, that is p x. Generally we say like this. This means that the power, the variable is x, so we say p of x or we say px. So polynomial p of x, that is px. You can say that p of py. P of y means the variable in the expression will be y. So all the variables should be x, then we say px, and if the variable is y, we say p of y or py. Now if I say py, then you will say root 2 y cube minus 3 by 2 y square plus 5y minus 7. So polynomial is an expression. When I say equation, expression may be like that also. Example, 2x plus 3y. This is an expression. But here the two variables are there. Here two variables are there. Now when this 2x plus 3y is equated by any number, you can say that 7. This is what? Equation. That is expression equated or equal sign is there in the expression, you will say equation. 2x plus 3y, again this is an expression. If I put greater sign or greater than 7, or 2x plus 3y less than 7, or 2x plus 3y greater than equal to 7, 2x plus 3y less than equal to 7. These are the example for inequalities. So first of all, you must know what is the difference between expression, equation and inequalities. So you now, I hope you will understand the difference. What is the difference between expression, what is the difference between equation and inequalities. Inequalities will be in the 11th class. Now we will be studying about the equations. So here now polynomial. So polynomial is what? Polynomial is an expression. Having many terms. You can say that polynomial is an expression. So but I have explained what is the expression. So expression is what? Having the terms, and how the terms are formed. This is the general term or general definition that you must know. इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. कोई भी पूछे पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन है, इतना सा याद रखें. कितनी टर्म्स होती हैं? मैनी टर्म्स हो सकती हैं, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है. Polynomials are classified according to first number of terms, and second according to degree of the expression. Now I have explained what is the number of terms. So according to number of terms,
According to number of terms, polynomial are of types. First, that is monomial, having one term. Second, binomial, having two terms. Three, that is third type, trinomial, having three terms. Fourth comes the quadrinomial, having four terms. Now if we talk about example, you can say that example here 2x square. Here you can say that 2x square, example 2x square plus 3x. 2x square, example 2x square plus 3x plus 7. Example 3x cube plus 2x square plus 3x plus 7. So when we talk about the polynomial, एक बार हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पॉलिनोमियल को देखना है तो लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? पावर जो है ये देखिए, पावर 3, 2, 1 और 0. किसी भी पॉलिनोमियल को स्टार्ट लिखने से पहले ये चेक कर लें एग्जाम के अंदर कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है. पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए. पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री. अब नाउ अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, polynomial are of types. First, linear polynomial. Linear polynomial किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1. एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोल सकते हैं 2x. दैट इज, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री 2. एग्जाम्पल मान लीजिए 3x स्क्वायर. ये क्या है? क्वाड्रेटिक है बट मोनोमियल है. यहां लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है और मोनोमियल भी है. फिर इसके बाद थर्ड जो आता है हमारे पास, वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 3. एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो आपने बोला 5x क्यूब. ये क्यूबिक है और मोनोमियल भी है. अब क्यूबिक बाइनोमियल भी होते हैं, क्यूबिक ट्राइनोमियल भी होते हैं, ये डिपेंड करता है. इसके बाद फोर्थ ये आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री 4. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 7x की पावर 4. ये क्या है? सिंगल मोनोमियल की एग्जाम्पल लिए हैं. तो पहला एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर 1 नंबर में कि क्लासिफाई करिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है. आइडेंटिफाई किए तो आप बता सकते हैं आइडेंटिफाई करके कि भाई मोनोमियल भी है और
अगर हमसे पूछा जाए ये कौन सा है तो आप बोलेंगे मोनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा है? मोनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको बोलेंगे मोनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, और ये मोनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हमारे पास जब क्लासिफिकेशन हो गया तो हमारे पास इसमें एक वर्ड है डिग्री। डिग्री को भी क्लियर कर लें। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ये चीज ध्यान रखें, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। इसके बाद पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी याद रखें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर that is without variable, or you can say that the variable is there, but degree is 0। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखना है। डिग्री इज 0। नाउ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एग्जांपल दिया हमने, तो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 0। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एनी रियल नंबर बोला है तो इसका मतलब है कि 5 और x की पावर 0 दे दिया आप, तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, इसलिए हम इसको 5 बोल देते हैं और हमारे पास ये क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल इज 0। अब एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल इज 0, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो आप बता सकते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, बट हमने तुम्हारे को यहाँ पर एक बार रिवीजन करा दिया कि 10th क्लास के अंदर ये सब मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है
देखिए हमने कभी 9th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा है, फाइंड द zeros of the polynomial x plus 3। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब इसमें इसको करने का तरीका क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी नहीं याद है तो ये देखें, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। पहले तो हम उस पॉलिनोमियल का नाम लिखा है हमने पी एक्स, अगर y वेरिएबल होता तो पी वाई लिख देते, यहाँ पर x वेरिएबल है तो ये एक्सप्रेस इसके अंदर हो जाएगा पी एक्स। फिर हम एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये, फॉर जीरोज के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, दैट इज 0 इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यू कैन से दैट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, this so x equal to -3 is the 0, that is when we put the value x equal to -3 in the polynomial you will get the result 0। तो इसके अंदर देखिए ये लाइन बहुत कम बच्चे लिखते हैं एग्जाम के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना है, फॉर जीरोज कंडीशन इज व्हाट, पी एक्स इक्वल टू 0 होती है। तो ये चीज ध्यान रखें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बहुत है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिव्स नंबर ऑफ जीरोज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिव्स नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ हियर डिग्री is 2, therefore number of zeros will be 2, number of zeros will be 2। so let px equal to x square minus 5x plus 6, degree equal to 2, therefore number of zeros will be 2। तो you have to remember that कि बिना सॉल्व किए, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए बताइए कितने जीरोज होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जितनी भी डिग्री होती है एक्सप्रेशन की उतने ही जीरोज इसके अंदर होते हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो हमें मालूम होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर ये हमारे काम की चीज है, लीनियर पॉलिनोमियल। बट इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मेरे हिसाब से देखते हैं ax प्लस बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको ax प्लस बी लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू ax प्लस बी, कंडीशन यहां हो जाएगी a नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि a की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर अब फॉर जीरोज के लिए हमारे पास क्या है, पी एक्स की इक्वल टू 0 कंडीशन होती है, तो हमने लिख दिया 0 इक्वल टू ax प्लस बी, और यू कैन से दैट, ये आदत में डालें बेटा, और ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये चीज ध्यान रखें। तो b यहां हो गया माइनस, b इज द कांस्टेंट टर्म,
और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये ध्यान रखें, इसके अंदर ये जीरोस के लिए क्या कंडीशन है, पी एक्स इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये पी एक्स की जगह हमने 0 लिखा है और इसके बाद एक लाइन हमेशा आदत में डालिए, और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। जो एवरेज बच्चे हैं और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो यही गलती करते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर लिखें। इसके बाद जैसे यहाँ पर बात कर दी, तो अगर पूछा जाए कि भाई ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ये ध्यान रखना है, 1 पॉइंट पे काटेगी ये, ठीक है। को कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, कट एट 1 पॉइंट। तो यहां पर देखिए लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ is straight line, cuts x axis at 1 point when the expression has variable x, then line will cut x axis। तब यहां पर लिखने के when the expression has variable x then line will cut x axis। अगर मान लीजिए y वेरिएबल होता तो y एक्सिस को काटेगा। तो ये ध्यान रखना है, समटाइम कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं, y इक्वल टू पी एक्स, दिस इज नाउ। इसके अंदर हमने देखा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। तो जो भी रिलेशन निकालने हैं, रिलेशन किसके साथ निकलेंगे, रिलेशन विल बी विद x एक्सिस। ये चीज ध्यान रखना है, रिलेशन विल बी विद x एक्सिस। यहां पर इस y से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था एक बार कि x इक्वल टू पी वाई, और बच्चे कंफ्यूज हो गए सर इसमें क्या करना था। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है तो वो x के साथ ही रिलेशनशिप निकलेगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे हमने बोला पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर आपने बोला a नॉट इक्वल टू 0। अब a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास देखिए x इक्वल टू आया था माइनस बी बाय ए, तो x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये चीज का ध्यान रखना है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए और x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज व्हाट डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हम इतना पढ़ लें तो काफी कुछ हो जाएगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहां देखा कि नंबर ऑफ जीरोस, एक और चीज ध्यान रखें, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, बिकॉज डिग्री इज 1, डिग्री 1 है, इसलिए बिकॉज डिग्री इज 1, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बिकॉज डिग्री इज 1। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax square plus bx plus c, this is standard form, px equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0, डिग्री 2। तो अब ये समझ में आ गया, यहां पर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म। ये चीज ध्यान रखें। नंबर ऑफ जीरोस 2, बिकॉज डिग्री 2, zeros are alpha, बीटा, 2 जीरोस है, इन दोनों जीरोस का हमने नाम अल्फा बीटा रखा है। इसके बाद ग्राफ पैराबोला, opening of parabola depends on the coefficient of x square, depends on the opening of the parabola depends on the coefficient of x square. If coefficient of x square is positive, then parabola open upward is like this is the parabola shape and it will be like that. So coefficient of x square, so you will come to know if a is negative, the parabola will be inverted, and if the variable here in the expression the variable is x, so parabola will cut x axis. So parabola will cut x axis as the quadratic polynomial has variable x. Parabola will cut x axis as the quadratic polynomial has variable x. जस्ट अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो ये हमारे पास y है, ये y डैश है,
और ये x है ना, और ये x डैश है। तो पैराबोला की सिचुएशन क्या होगी, इस तरह से होगी। ये देखिए पैराबोला, ये पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है, ये देखिए, और ये पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पैराबोला की ओपनिंग तो समझ में आ रही है। ये दोनों पॉइंट, ये एक अल्फा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस जगह अल्फा और बीटा इक्वल होगा, और यहाँ पर नो जीरोस, ये कट नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है बीच वाला पैराबोला, तो यहाँ लिखा जाएगा नो जीरोस। तो हम इसमें एक और चीज देखते हैं, डी एक होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो यहां पर देखेंगे तो डी इक्वल टू 0 होता है, यहां पर डी क्या होता है, लेस देन 0 होगा, और यहां पर डी होगा ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डी इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यू नो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सी कांस्टेंट टर्म। तो आज की क्लास में हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल की क्लास सेकंड, आप अपने दोस्तों को ये बताएं टॉकिंग टेक्स्ट बुक का पार्ट पॉलिनोमियल पार्ट 1 है, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और इसको देखकर वीडियो को आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।